مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ آج میری آنکھ دیر سے کھلی اور میری نظر جیسے ہی گھڑی پر پڑی تو میں گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ میرے آفس کا باس بہت خڑوس تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے دیر سے آنے والوں کی اچھی خاطر تواضع کرتا۔ بس آج میری عزت افزائی نہ ہو جائے، اسی ڈر سے میں جلدی سے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر میں اپنے کمرے سے نکلا تو ناشتہ بالکل تیار تھا۔ اماں نے مجھے ناشتے کے لیے آواز دی، پر میرے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ پیک کروا لیا اور اماں سے کہا میں آفس میں ہی کر لوں گا۔ بہت تیز قدم چلتا ہوا بس اسٹاپ پر پہنچا۔ ابھی میں جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ دور سے مجھے بس آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے بس پکڑی اور آفس پہنچا۔ میں آفس کے ٹائم سے 2 منٹ پہلے پہنچا تھا اور اپنی سیٹ پر جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج بچ گیا۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد میں نے ناشتے کا ٹفن کھولا اور ناشتہ کیا۔ اب میرا دماغ کچھ چلتا اور کوئی کام کر پاتا، کیونکہ خالی پیٹ مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف ہوا۔ روزانہ کی طرح آج بھی میرا ٹیبل فائل سے بھرا پڑا تھا۔ فائلز دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اب میں دل میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں باس نے اتنا پیسہ کما کر کیا کرنا ہے۔ میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھانے پر مجھے معلوم ہوا کہ باس مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا نیا کام میرے ذمے لگانا ہے۔ جیسے ہی میں اجازت لے کر باس کے کمرے میں گیا تو مجھ سے پہلے ہی 2 لوگ باس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ باس مجھ سے کہنے لگے کہ یہ 2 نئے لڑکے رکھے ہیں، ان کو ذرا ان کی سیٹس دکھاؤ اور ان کو ان کا کام سمجھا دو۔ میں باس کو جی بولتا ہوا ان دونوں لڑکوں کو لے کر باس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو ان کا کام سمجھایا اور ان کو ان کی جگہ دکھائی۔ اس آفس میں ہم ٹوٹل 15 لوگ تھے اور 15 کے 15 ہی لڑکے تھے۔ آفس میں کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بریک ٹائم میں اور میرا دوست یہی بات کر رہے تھے کہ ہم سب لڑکے ہی ہیں، آفس میں کوئی لڑکی ہمارے کام نہیں کرتی۔ تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، جس طرح کا ہمارا باس ٹھرکی ہے، اس طرح کے ماحول میں تو کوئی بھی شریف زادی کبھی کام نہیں کرے گی۔ میری یہ بات سن کر میرا دوست کہہ کے لگانے لگا، ہاں تو اور کیا، غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ باس ایک تو ٹھرکی ہے، اوپر سے سخت بھی۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ نرم دل ہوتی ہیں، بہت چھوٹے سے دل کی مالک ہوتی ہیں، وہ اتنی سختیاں برداشت نہیں کر پاتی۔ میرا دوست مجھے دیکھنے لگا اور میرا مذاق اڑانے لگا، تجھے بڑا پتہ ہے لڑکیوں کے بارے میں، تو نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یار میں تو تجھے بڑا شریف سمجھتا تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی باتوں پر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آفس کا سارا دن بہت پریشانی میں گزرتا، ہر وقت دل کو ڈر لگا رہتا کہ ابھی باس کے کمرے کی گھنٹی بجی، ابھی گھنٹی بجی۔ ہم لوگوں کا ہنسی مذاق کا ٹائم صرف یہ بریک ٹائم ہی ہوتا، اس میں ہم اپنے سارے دن کی تھکان ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر کے اتار لیتے۔ باس کی ایک عادت بہت اچھی تھی اور وہ یہ تھی کہ باس سیلری ٹائم پر دیتے تھے۔ ایسے ہی ہمارا کام چلتا رہا اور ہمارا آفس ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں باس کو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی ضرورت پڑی۔ اب انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انٹرویو دینے کے لیے آتا اور ان میں سے کوئی ایک آدھ تو سلیکٹ ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن لڑکوں کی بھیڑ میں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق کافی غریب طبقے سے ہے۔ اتنے لڑکوں میں وہ ایک تنہا لڑکی انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ مینیجر نے اس لڑکی کو سلیکٹ کر لیا۔ اب ہمارے آفس میں 30 لڑکوں کے ساتھ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی جس کو کام کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ پورے آفس میں باتیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنے سارے لڑکے ہیں اور باس نے ایک لڑکی کو سلیکٹ کر کے ہم لوگوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ جتنی بے عزتی دیر سے آنے پر باس سے ہوتی ہے، اب سب کو اپنی اپنی فکر تھی کہ لڑکی کے سامنے عزت کم نہ ہو، اس لیے ہر کوئی اپنا آپ اچھا دکھانے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ لڑکی انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کبھی نظریں اٹھا کر نہ کسی کی طرف دیکھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادہ فری ہوتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہم سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ایک فکر ہمیشہ رہتی، باس سے کبھی اس بیچاری کی شامت آ گئی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ لڑکی ضرورت مند تھی اور شریف بھی، اس لیے ہمیشہ مجھے اس کی فکر رہتی۔ پھر ایک دن جب مجھے اس لڑکی کی حقیقت معلوم ہوئی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
मेरा नाम जवाद है। मैं लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे घर में लड़ाइयों का सिलसिला जारी हुआ। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया था। मेरी अम्मा के पास रहने को कोई ठिकाना ना था। अम्मा के एक ही भाई थे। अम्मा उनके पास चली आई। अम्मा बताती हैं कि वो हर वक्त रोती रहती थीं अब्बा को याद करके, क्योंकि अब्बा के साथ अम्मा की लव मैरिज थी, इसलिए अम्मा अब्बा को भुला नहीं पा रही थीं। फिर अल्लाह ताला ने अम्मा की झोली में मुझे डाला और अम्मा का दुख थोड़ा कम होने लगा। मैं अपने मामू के यहाँ 2.5 साल का हुआ ही था कि मेरे अब्बा माफ़ी तलाफ़ी करके मुझे और मेरी अम्मा को वापस अपने साथ लाहौर ले आए। मैं अब्बा से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ अटैच था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के दिन अपनी माँ की झोली में गुजारे थे। जब से अब्बा मुझे और अम्मा को वापस अपने पास ले आए तो अब्बा ने अपनी फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। अब्बा एक अयाश इंसान थे। अम्मा के होते हुए अब्बा के ताल्लुकात गैर औरतों के साथ थे। ना कोई घर का खर्चा उठाते और ना ही मेरे दूध का खर्चा उठाते। अम्मा को इस कदर परेशान कर रखा था कि कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अम्मा हर वक्त रोती रहती। मालिक मकान आकर रोज अम्मा की बेइज्जती करता और अम्मा को घर से निकल जाने की धमकियां देता। अम्मा जब भी अब्बा से पैसों का मुतालबा करती तो अब्बा खूब अम्मा को मारते पीटते और अपने दिल की हसरत पूरी करते। अम्मा बेचारी रो धोकर चुप कर जाती। अगर मामू को बताती तो मामू कहते कि ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा है जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकता, जो एक वक्त का खाना नहीं दे सकता। तो ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम उसे छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें और बच्चे को संभालूंगा। अम्मा अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अम्मा ने वहीं पे करीब एक स्कूल में जॉब कर ली, जहाँ से अम्मा स्कूल पढ़ाने के बाद एक एकेडमी में पढ़ाने जाती और इस तरह करके घर का गुजर बसर करने लगी। अब्बा की अय्याशियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। गैर औरतों से ताल्लुकात तो एक आम सी बात थी। अब्बा ने शराब पीना शुरू कर दी। अक्सर घर में शराब पीकर आते और मारपीट करते। मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं सब कुछ समझता था। मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैं अक्सर अम्मा को प्यार करता और सहम के उनके साथ लग जाता। अब्बा की ऊंची आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती थी। अब्बा कई कई दिन घर से गायब रहते। जब अब्बा को पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उन्हें याद आता कि उनका एक बेटा और एक बीवी है। तब उन्हें हमारी याद आती तो लड़ झगड़ कर अम्मा से पैसे छीन कर ले जाते और फिर कई कई दिन तक गायब रहते। अम्मा अब्बा की हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। अक्सर अब्बा जब अम्मा को मारते और लड़ते झगड़ते तो अम्मा रोते हुए कहती कि मेरे पाँव की बेड़ी जवाद बन गया है। अगर ये ना होता तो मैं कब की आपको छोड़कर जा चुकी होती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजारे। यही वजह है कि मैं आज तक आपके जुल्मों सितम बर्दाश्त कर रही हूँ। पर अम्मा की कोई भी बात अब्बा पर असर ना करती। ना तो अब्बा को अम्मा की बेबसी नजर आती और ना ही अम्मा के आंसू। मैं ये सब कुछ देखता रहता और सहम कर अपनी अम्मा की गोद में चिपका रहता। अब अब्बा के जुल्म और बढ़ते गए। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और उस औरत को लाकर मेरी अम्मा के सर पर सवार कर दिया। अम्मा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ये बात अम्मा ने बिल्कुल भी बर्दाश्त ना की। जब अब्बा ने मेरा हाथ मेरी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ा दिया, अम्मा ने उस औरत से मुझे छीना और रोते हुए कहने लगी, मैं बीवी कमज़ोर थी जो अपना घर नहीं बचा पाई, लेकिन मैं माँ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे बच्चे की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं आंखें नोच लूँगी। अपने सौगात को यहाँ से ले जाएं, जहाँ दिल करता है वहाँ इसको रखें। मैं एक लम्हे के लिए भी इस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको खो बैठी हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। अम्मा का इतना कहना था कि अब्बा ने अम्मा को बहुत ज़्यादा पीटा। मार मार के अम्मा की नज़र का मसला बन गया। अम्मा को दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर को चेक करवाने पर पता चला कि दिमाग में बहुत ज़्यादा जूते मारने की वजह से नज़र में मसला आया है। अब अम्मा की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब्बा ने अम्मा को घर से निकाल दिया और अम्मा मुझे लेकर वापस मामू के घर आ गईं। अब्बा ने पीछे ही अम्मा को तलाक भेज दी। अम्मा की ज़िंदगी चंद सालों में ही उजड़ गई। अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। सब ने समझाया कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जवाद का कौन है, इसको कौन संभालेगा। बाप तो इसका पहले ही अयाश है, तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सबके समझाने पर अम्मा ने दोबारा से जीने का फैसला किया और अपने पाँव पर खड़ी होने लगी।
अम्मा ने एकेडमी पढ़ाई। ऐसे ही जो काम अम्मा के हाथ में लगता, अम्मा उससे इनकार ना करती और फौरन से उस काम को करना शुरू कर देती ताकि चंद पैसे जमा कर पाएं। इतनी मिन्नतों के बाद मैं परवान चढ़ा। अम्मा ने मुझे अच्छी तालीम दी, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई। मैं अपनी अम्मा को अपने बचपन से ही मेहनत मुशक्कत करते देखता आ रहा था, इसलिए मैंने ये बात बचपन से ही अपने दिमाग में बिठा ली थी कि मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा हूँ और मैं अपनी अम्मा को कभी भी नाउम्मीद नहीं करूँगा। यही वजह थी कि मैंने पढ़कर नौकरी की तलाश की और मुझे मेरी काबिलियत के बलबूते पर अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था। यहाँ पर मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। मैंने मेहनत करके अपना बहुत प्यारा सा छोटा सा घर बनाया। मेरी अम्मा और मैं अब इस घर में रहते हैं। मैंने अम्मा के सब काम छुड़वा दिए। अम्मा सिर्फ खाना बनाती और नाश्ते वगैरह का काम करती। बाकी सब कामों के लिए मैंने काम वाली रखवा दी थी। अम्मा ने सारी जिंदगी मेरी ज़रूरियात के लिए और मेरे सुकून के लिए दर दर के धक्के खाए थे। अब मेरा फर्ज था कि मैं अपनी माँ को वो सब ऐशो इशरत दूँ जिसकी वो असल में हकदार थी। मैं और अम्मा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए उठा तो मैं खासा लेट हो चुका था। अम्मा ने मुझे कहा कि नाश्ता करते हुए जाना, पर मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने नाश्ता पैक करवा लिया और ऑफिस चला गया। हमारा ऑफिस बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले हम सिर्फ 15 लड़के थे। वैसे तो हमारे बॉस अच्छे थे, लेकिन असूलों के बहुत पक्के थे। कोई भी लेट आता तो उसकी बहुत इज्जत अफजाई होती। ये तो हर ऑफिस के कुछ असूल होते हैं जिनको हम जैसे एम्प्लॉइज को फॉलो करना पड़ता है। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था ऑफिस में। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया। मेरी उसके साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। हम एक दूसरे के घर भी आते जाते थे और ऑफिस में काम भी इकट्ठे करते। काम से फारिग होकर हम कैंटीन में कुछ खाने पीने के लिए जाते और वहीं पर हंसी मजाक करके अपने सारे दिन की थकन उतार लेते। राशिद बहुत अच्छा लड़का था। राशिद की दोस्ती पर सारा ऑफिस रश करता था। उस ऑफिस में सिर्फ लड़के ही थे, लड़की कोई भी नहीं थी। हमारा ऑफिस दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रहा था, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब बॉस को कुछ और लोगों की ज़रूरत आन पड़ी थी। अब हमारे ऑफिस में इंटरव्यू होने लगे। एक दिन इंटरव्यू के दौरान एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। उस पूरी लाइन में सारे लड़के ही लड़के थे, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मैं उस लड़की को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो बहुत खस्ता हाल लिबास पहने हुए थी। मालूम होता था कि बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। वो निहायत शरीफ ख़ानदान से लगती थी। मैनेजर ने उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया। अब हम 30 लड़के और हमारे ऑफिस में तन्हा वो एक लड़की थी। हर कोई उस लड़की के आगे अपनी इज्जत बढ़ाने में लगा रहता। हर कोई चाहता कि उस लड़की के सामने अच्छा दिखाई दे। हर कोई उसे इम्प्रेस करने में लगा रहता था, पर वो लड़की किसी को भी घास ना डालती। वो निहायत ही शरीफ थी। वो ना तो किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही किसी से फ्री होती। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। हम लोग अक्सर आपस में बात करते कि ये बेचारी कहाँ फंस गई है। बॉस ने अभी तक इसको देखा नहीं। जिस दिन देखेंगे तो ज़रूर बॉस भी अपना ठरकीपन झाड़ना शुरू कर देंगे। लड़के आपस में अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता और उस लड़की पर बहुत तरस आता, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं थी। वो हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत करती रहती, अच्छा और मुकम्मल लिबास पहनती और बिल्कुल सादा सी रहती। उसकी सादगी और उसका इखलाक मुझे भाने लगा। मुझे ये लड़की पसंद आने लगी। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है जो उसने ऑफिस की नौकरी को चुना। आज इरम बहुत परेशान थी। जब वो ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया कि सब ठीक तो है, तुम परेशान लग रही हो। उसने घबराते हुए कहा, जी सब ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो। समझ में नहीं आ रहा था कि उससे उसकी परेशानी के बारे में कैसे पूछा जाए। मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि मेरे अब्बा की हालत बहुत ख़राब है, बस उनको लेकर सारी रात हॉस्पिटल रही हूँ, जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी हुई और सर में काफ़ी शदीद दर्द है। मैंने उसको कहा कि आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। उसने कहा कि नहीं, छुट्टी लेकर गुजारा नहीं था, इसलिए छुट्टी नहीं ली। मैंने उसे कहा चले काम छोड़ें और मेरे साथ कैंटीन में चले, वहाँ आप चाय पिएं और साथ में आपको मेडिसिन लाकर देता हूँ। मेडिसिन खाएं, इंशाअल्लाह ताला अभी आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाया
کہ आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप मुझे अपना अच्छा दोस्त समझें, मुझे अपना खैर ख़ाह समझें। चलिए, मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लिया और कैंटीन पर चला गया। वहाँ पे उसे चाय पिलाई और साथ मेडिसिन लाकर दी। मेडिसिन खाने के बाद वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। अब हम वापस ऑफिस में आ गए और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ऐसे इरम के साथ मेरी दोस्ती शुरू हो गई। मैं, इरम और राशिद अब कैंटीन में एक साथ खाना खाते और गप्पे हाँकते। मैं और राशिद इरम के सामने अक्सर बॉस की बातें कर कर के मजाक उड़ाते। वो मुस्कुराती रहती और चुपचाप सुनती रहती। वो अभी तक बॉस से मिली ही नहीं थी, इसलिए उसको पता भी नहीं था कि बॉस कैसी आदत रखते हैं। ऑफिस का सारा काम मैनेजर ने संभाला हुआ था। अब बॉस कभी कभी ऑफिस आते और रोब झाड़ कर चले जाते। एक दिन इरम ऑफिस ना आ सकी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि इरम को देखने की अब मुझे आदत पड़ गई थी। वो अपनी शराफत की वजह से और अपनी सादगी की वजह से मुझे बहुत प्यारी लगने लगी। मैंने अभी तक उससे अपनी पसंद का इजहार नहीं किया था, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। उसको एक दिन ना देखता तो बेचैनी सी होने लगती। आज का सारा दिन बहुत ही बोर गुजरा। किसी भी काम में जी नहीं लग रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता कि शायद लेट आ जाए, पर इरम आ जाए। राशिद ने मुझसे कितनी दफ़ा पूछा, क्या बात है, आज तेरी भी तबीयत सही नहीं लग रही। अगर तबीयत नहीं ठीक तो तू ऐसा कर, छुट्टी लेकर घर चला जा। अब मैं उसको क्या बताता कि यार मेरी तबीयत तो ठीक है, मेरा दिल ठीक नहीं है। मेरा दिल बुझा बुझा सा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ऑफिस का टाइम पूरा किया और घर चला गया। इरम का नंबर तो था मेरे पास, लेकिन मैंने डरते हुए कॉल ना की कि कहीं उसके घर वाले बुरा ना मान जाएं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा परेशान चेहरा देखकर अम्मा ने भी मुझसे सवाल किया कि खैरियत है, आज थके हुए हो या परेशान हो। मैंने अम्मा से कहा कि एक कप चाय बना दे, बहुत थकावट हो गई है। मैंने इरम का जिक्र अभी अम्मा से किया ही नहीं था, मगर ये सच था कि मुझे इरम की ही परेशानी थी जो मेरे चेहरे पर सबको दिखाई दे रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। मैं कभी मोबाइल निकालता और कभी रख देता। मैं दिल में दुआएं कर रहा था कि खुदा करे इरम खुद मुझसे राब्ता कर ले। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा तो एक नंबर से कॉल थी। मैंने कॉल अटेंड की तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये आवाज़ इरम की थी। मैंने इरम से पूछा, सब खैरियत है? तुम कहाँ थी सारा दिन? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ। मैंने ऑफिस में तुम्हें सारा दिन बहुत मिस किया। तुम आज ऑफिस आई क्यों नहीं? इरम ने मुझे बताया, अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी। अब्बा की तबीयत कैसी है? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आ जाऊं? मैंने इरम से पूछा। नहीं, अब काफ़ी बेहतर हैं। अभी अभी तो मैं हॉस्पिटल से घर लेकर आई हूँ। मैंने इरम से पूछा कि अब्बा को आखिर मसला है क्या? मेरे सवाल पूछने पर इरम ने बताया कि उसके अब्बा के दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं और अब्बा के हर हफ्ते गुर्दे साफ होते हैं, और जब गुर्दे साफ करवाती हूँ तो अक्सर अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कई कई दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ता है। इरम ये बताते हुए रोने लगी। तो पूछने पर इरम ने बताया कि उसके घर में सिर्फ उसके अब्बा, अम्मा और ये खुद होती है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम अब्बा की परेशानी मत लो। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो गुर्दों का ही डॉक्टर है। मैं उससे टाइम लेता हूँ और तुम्हारे अब्बा को उससे चेक करवाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई बेहतर हल निकालेगा। मैंने इरम से पूछा, क्या तुम कल ऑफिस आओगी? तो उसने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, जाहिर है ऑफिस ना आकर गुजारा नहीं है। एक दिन की भी तनख्वाह कट गई तो मेरे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इरम से कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, कल ऑफिस आओ, फिर बैठकर कोई हल निकालते हैं। मैं अभी इरम से बात कर ही रहा था कि अम्मा चाय लेकर कमरे में आ गई। मैंने इरम को अल्लाह हाफिज कहा और फ़ोन रख दिया। अम्मा के पूछने पर मैंने बताया कि इरम मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैंने अम्मा को उसके अब्बा के बारे में और उसके घर के हालात के बारे में सब कुछ बताया। अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी, अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। अम्मा इरम को दुआएं देने लगी। अम्मा अच्छी तरह से इरम की परेशानी को समझ सकती थी, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी भी इन्हीं हालात से गुजरी हुई थी। अम्मा की आंखें भर आईं। मेरे पूछने पर अम्मा ने बताया, बस गुजरा वक्त याद आ गया था।
بیٹا تمہارے ابا کی گئی زیادتیاں اور میری وہ محنت مشقتیں، ارم کی کہانی سن کر سب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس لیے دل بھر آیا۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرتے ہوئے سمجھایا کہ اماں، اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش دی تھی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھ بھی تو کتنا دیا ہے نا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، جواد تمہیں کبھی اپنے ابا کی یاد نہیں آئی؟ میں نے اماں سے کہا، میرے ابا بھی آپ ہیں اور میری اماں بھی آپ ہیں۔ جب مجھے کسی نے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں، اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا ہی نہیں، تو مجھے کیوں کر ایسے انسان کی یاد آئے گی؟ میں نے اور اماں نے چائے پی اور خوب باتیں کی۔ اماں مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا بنا ہے؟ اماں نے مجھے بتایا کہ کھانے میں دال چاول بنے ہیں، یہ میرے بہت پسندیدہ تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ چلے کھانا کھاتے ہیں، پھر کوئی اور بات کریں گے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر اماں ٹی وی دیکھنے لگ گئیں اور میں نے اپنا آفس کا ایک کام کرنا تھا، میں اماں کے پاس بیٹھ کر وہ فائل مکمل کرنے لگا۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ اماں نے کہا کہ اب تم جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، صبح تمہیں پھر سے آفس کی دوڑ بھاگ میں لگ جانا ہے۔ میری عادت تھی، میں روزانہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا۔ میں اماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر ارم کے بارے میں سوچنے لگا۔ ارم کی سسکیاں میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے اس کی ساری پریشانی کا حل نکالوں۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکلا۔ جب میں آفس پہنچا تو آج ارم مجھ سے پہلے ہی آفس میں تھی۔ میرے پوچھنے پر ارم نے بتایا کہ اس کے ابا کافی بہتر ہیں۔ میں نے ارم سے پوچھا کہ ناشتہ کیا ہے؟ ارم نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بہت لیٹ ہو گئی تھی اس لیے ناشتہ نہیں کیا۔ راشد سے پوچھا تو راشد بھی ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا، تو ہم تینوں نے کینٹین جانے کا پروگرام بنایا۔ مینیجر سے آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر ہم تینوں کینٹین چلے گئے اور وہاں جا کر انڈے پراٹھے کا ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میری نظر مسلسل ارم کے چہرے پر تھی۔ میں نے آج سے پہلے ارم کو کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ ارم بہت خوبصورت تھی۔ ارم کے چہرے پر موٹی موٹی آنکھیں بہت سی کہانیاں چھپا رہی تھیں۔ میں ارم کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ارم کو بول دوں کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ دوسری طرف مجھے اماں کا خیال آتا کہ پہلے مجھے اماں سے بات کرنی چاہیے، اگر اماں کی رضامندی ہوگی تو ہی میں اپنی پسند کو اپناؤں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ آج گھر جا کر اماں سے ارم کے رشتے کی بات ضرور کروں گا۔ ہم نے آفس کا کام مکمل کیا اور ساتھ ہی گھر کے لیے نکلے۔ آج کا سفر میں نے اور ارم نے ایک ساتھ کیا۔ ہم ایک ہی بس میں گھر کے لیے نکلے۔ ارم کا گھر کیونکہ میرے گھر سے کافی پیچھے تھا اس لیے وہ پہلے ہی سٹاپ پر اتر گئی۔ میں مڑ مڑ کر اس کو دیکھتا رہا۔ میرا گھر بھی آ چکا تھا۔ میں گھر آیا، اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے اماں سے کہا اکٹھے کھاتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں، آج میں اپنے دل کی کوئی بات آپ سے کروں تو آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ اماں نے کہا بیٹا، اپنے دل کی بات اپنی ماں سے نہیں تو کس سے کرے گا، اور میں برا کیوں مناؤں گی؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے جو میرے بیٹے کو مجھ سے پوچھنا پڑا؟ میں نے شرماتے ہوئے اماں سے کہا اماں آپ ایک دفعہ ارم سے مل لیں۔ اماں نے کہا کس سلسلے میں؟ میں نے اماں کو بتایا اماں میں ارم کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ارم سے شادی کر کے اسے ان پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اماں مسکرائیں اور کہنے لگیں بیٹا زندگی تم نے گزارنی ہے، مجھے تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں، اگر ارم تمہیں پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے بیٹا جس کو پسند کرے وہی میری بہو بنے، لیکن ڈر لگتا ہے ایک بات کا، محبت کچھ بھی جانے سمجھے بغیر ہو تو جاتی ہے مگر اس کو نبھانا کوئی کوئی جانتا ہے۔ ایک ہی بات بولوں گی، اگر تم نبھا سکتے ہو تو ہی ارم کا ہاتھ تھامنا، ورنہ محبت کی شادی کرنے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا اماں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میری تربیت آپ نے کی ہے اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور بیوی کی عزت کیا ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کو لے کر بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں ارم کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کا دکھ سکھ میں ساتھ دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے کیا؟ اماں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے لیکن ارم کے عاشق پر نہیں۔
सोच समझ लो, फिर फैसला करना। इरम से भी पूछ लो वो क्या चाहती है, फिर कुछ टाइम दो उसे भी और खुद को भी, उसके बाद फैसला करना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना जो कल को तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी की वजह बने। मैंने अम्मा को जी बोलते हुए खाना खत्म किया। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था। मैं इस इंतजार में था कि कब सुबह हो और कब मैं इरम से अपने दिल की बात बोलूं। सुबह हुई तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैं इरम से अपने दिल की बात बोलूंगा। मैं ऑफिस पहुंचा तो इरम मामूल के मुताबिक अपनी सीट पर बैठी अपना काम कर रही थी। मैंने जाते ही इरम से हाल अहवाल पूछा और उसे कहा मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। इरम ने हैरान होते हुए कहा, क्या जानना चाहते हो? मैंने इरम से पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इरम हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात का ठीक से जवाब दो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इरम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं तय तो नहीं किया हुआ? इरम बहुत हैरान होते हुए मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी कि क्या हो गया है जवाद, कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, तो साफ साफ सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या जवाब है? इरम मेरा मुंह देखने लगी। इरम की आंखें आंसू से भरी पड़ी थीं। इरम मुझसे कहने लगी, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते जवाद। हर इंसान का एक माजी होता है, इसी तरह मेरा भी एक माजी है। मैंने इरम से कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भी एक माजी है, पर मुझे माजी से क्या लेना देना? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मुझसे शादी करोगी? अभी मैंने ये सवाल किया ही था कि ऑफिस के मैनेजर ने सबको बताया कि आज बॉस ऑफिस में आ रहे हैं। आज सैलरी बॉस अपने हाथों से देंगे, क्योंकि बॉस ने सबके लिए एक बोनस अनाउंस किया है जो सबको आज सैलरी के साथ ही मिलेगा। सब बहुत खुश हो गए और हर तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी। मैं और इरम भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मैंने इरम से कहा, देखा तुम मेरे लिए कितनी खुशनसीब साबित हुई हो। मैंने तुमसे शादी की बात की और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज सुनने को मिला। इरम खामोश रही। कोई जवाब न देते हुए उसने अपनी फाइल्स को उठाया और मैनेजर के कमरे में चली गई। जाते जाते मैंने इरम से कहा कि मैं आज तुम्हारा जवाब सुनकर ही रहूंगा। वो चुपचाप चली गई। मैं भी अपनी सीट पर आकर अपना काम मुकम्मल करने लगा। अब सब इस इंतजार में थे कि बॉस कब ऑफिस तशरीफ लाएं और सबको सैलरी के साथ साथ बोनस की खुशखबरी भी दें। सब अपने अपने काम से फारिग हो चुके थे। मैंने सुना हुआ था कि बॉस बहुत ठरकी सा है, उसकी नज़र लड़कियों पर अच्छी नहीं होती। ऐसी काफ़ी अफवाहें ऑफिस में फैली हुई थी और यही वजह थी कि हमारे ऑफिस में शायद कोई लड़की रखी ही नहीं जाती थी। बहरहाल मुझे इरम की तरफ से परेशानी होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि इरम बॉस के सामने जाए और बॉस की हवस का निशाना बने। अभी मैं सोच ही रहा था कि बॉस ऑफिस में तशरीफ ले आए। अब एक एक करके तमाम एम्प्लॉयज को रूम में बुलाया गया और उनको बोनस के साथ सैलरी दी जाने लगी। मेरे बाद इरम की बारी थी। मैं सैलरी लेकर बाहर आया तो आते ही इरम से कहा, ध्यान से जाना। वो हैरान होकर मेरा मुंह देखते हुए बॉस के रूम में चली गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद इरम कमरे से वापस ना आई। मैं इरम का इंतजार करने लगा। काफी टाइम गुजर चुका था लेकिन इरम अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं ये सोच रहा था, आखिर अंदर क्या हो रहा है? इरम कब से गई है और अभी तक बाहर वापस नहीं आई? अभी मैं सोच में ही था कि मैंने सामने से इरम को आते हुए देखा। इरम बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सब खैरियत है तो वो नजर चुराकर गुजर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दिल में सोच रहा था कि इरम इतनी शरीफ लड़की है, जरूर बॉस ने कोई ठड़क जड़ा होगा जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि इरम ऐसी लड़की नहीं थी। मेरे बार बार पूछने पर भी इरम ने मुझे कुछ न बताते हुए इस मौजू पर बात करने से मना कर दिया। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ऐसी क्या बात है जो इरम का रवैया एकदम से बदल गया था। ऐसे ही वक्त गुजर गया और हम लोग अपने अपने घरों को चले गए। आज रात को सोते हुए मेरी आंखों से इरम का चेहरा ओझल नहीं हो रहा था। उसका ऑफिस से इस कदर परेशानी की हालत में निकलना मुझे कुछ ठीक इशारा नहीं दे रहा था। मैं बहुत परेशान था। मैंने कई दफ़ा इरम को फ़ोन किया लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। समझ से बाहर था कि आखिर उसे हो क्या गया है।
अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मालूम हुआ कि बॉस अब रोजाना ऑफिस आया करेंगे। मुझे शक होने लगा कि इस भली लड़की को देखकर बॉस की नीयत खराब हो गई है और बॉस ने ही कल इरम को कुछ कहा था जिसकी वजह से इरम बहुत परेशान थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन मुझे इरम आज कहीं दिखाई ना दी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो आज ऑफिस ही नहीं आई। बॉस ने जब इरम को कमरे में बुलवाया तो उनको बताया गया कि इरम ऑफिस नहीं आई, तो इरम को घर फोन करके ऑफिस बुलवाया गया। ये सब माजरा मेरी समझ से बाहर था। आज भी मैंने इरम से बात करना चाही लेकिन उसने मुझसे नजरें कतराते हुए मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं भी खामोश सब तमाशा देखता रहा। मुझे रह रहकर बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने दिल में ठान ली कि बॉस को किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा। इरम का घबराना और बॉस का बाकायदगी से ऑफिस आना, दोनों में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ था। मैं जानता था कि बॉस की इरम पर नजर ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इरम पर नजर रखनी शुरू कर दी। इरम ऑफिस आई। बॉस ने पता नहीं इरम से क्या कहा, वो बाकायदगी से ऑफिस आना शुरू हो गई। आज काम से फारिग होने के बाद जब सब अपने घरों के लिए निकलने लगे तो मैनेजर ने इरम से आकर कहा कि आज आप घर नहीं जाएंगी, आज आपका ओवर टाइम है, बॉस ने कहा है। इरम परेशान हो गई और रुक गई। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मैं आज रंगे हाथों उस कहानी से पर्दा उठाना चाहता था कि आखिर बात क्या है, जो ना तो इरम मुझे कोई जवाब दे रही थी और ना ही उसके चेहरे की परेशानी उस दिन से खत्म हो रही थी जिस दिन वो पहली दफा बॉस को मिली थी। मैं चुपके से वॉशरूम में छुप गया। मुझे यकीन था कि बॉस इरम को कमरे में जरूर बुलाएंगे। मैं उस वक्त का इंतजार करने लगा। फिर मैंने देखा कि बॉस ने इरम को कमरे में बुलाया है। जैसे ही इरम बॉस के कमरे में दाखिल हुई मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो शरीफ नजर आने वाली लड़की तो बॉस की गर्लफ्रेंड निकली और बॉस इरम के कदमों में बैठे गिड़गिड़ाकर न जाने किस गुनाह की माफी मांग रहे थे। मैंने ये सब देखा तो गुस्से से बॉस के कमरे से बाहर आ गया। इरम मेरे पीछे दौड़ती आई और मुझसे कहने लगी, मेरी बात सुन लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो इरम ने कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि तुमने जो देखा वो सब सच नहीं है। बॉस की सब बातें सच नहीं है। सच क्या है ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। इरम ने मुझे बताया कि मैं जब कॉलेज जाती थी तब मेरी मुलाकात काशिफ से हुई। मेरे अब्बा रिक्शा चलाते थे और ये बात काशिफ को मालूम थी। मैं और काशिफ एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। काशिफ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मैं गरीब तबके से ताल्लुक रखती हूँ। काशिफ मुझे हमेशा कहते कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई मसला नहीं, जब शादी करके मेरे घर आ जाओगी तो तुम्हारा स्टेटस मेरे साथ होगा। काशिफ ने कहा कि बस तुम अपने अब्बा से कहो कि वो रिक्शा चलाना छोड़ दे। मुझे काशिफ की ये बात समझ ना आई। मैंने काशिफ को बहुत दफ़ा ये बात समझाई कि मेरे अब्बा बहुत खुददार हैं और अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरी पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी। मैंने शुरू से ही काशिफ को ये बात अच्छे से बता दी थी कि अगर मेरे और आपके बीच अमीरी और गरीबी आ रही है तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन तब काशिफ ने हमेशा मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि अमीरी और गरीबी का फ़र्क मुझसे शादी करके वो दूर कर देंगे। हमारी मुलाकातें ऐसे ही होती रहीं। मुझे काशिफ से बहुत शदीद मोहब्बत हो गई। मेरी रोज़ की मुलाकात ने मुझसे वो गलती सरजद करवा दी जो मैं नहीं करना चाहती थी। काशिफ ने मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैंने काशिफ की बहुत मिन्नतें की। मैं बहुत रोई कि खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे किसके सहारे छोड़ना चाह रहे हो। तब काशिफ ने मुझे बेयारों मददगार छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम जैसी गरीब लड़की को मैं अपने घर की दुल्हन नहीं बना सकता। तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। मैंने जब ये सुना तो मैं बिल्कुल टूट गई। मर्द ज़ात से मेरा भरोसा उठ गया। मेरे अम्मा अब्बा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उस मोहल्ले में हमारा जीना हराम हो गया। हर तरफ मेरे बगैर शादी के माँ बनने की खबर फैल गई। हमारे रिश्तेदार सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरी इस गलती की वजह से मेरे माँ बाप को बहुत जिल्लत उठाना पड़ी। मैं अपनी मोहब्बत का बोझ लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी, लेकिन मैंने ठान
ठान ली कि ना मैं इस बोझ को ख़त्म करूँगी और ना ही मैं दोबारा कभी किसी मर्द के आगे भीख मांगूंगी। यही वजह थी कि मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। फिर मुझे तुम मिले, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा इखलाक और तुम्हारा मेरे लिए परेशान होना मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगा। लेकिन मेरे साथ जुड़े माजी ने मुझे कभी तुमसे कुछ भी कहने नहीं दिया। और जब मैं इस ऑफिस में आई तो मैं नहीं जानती थी कि ये ऑफिस काशिफ का है। जब काशिफ ने मुझे देखा तो मुझसे माफ़ी मांगी। इरम बहुत ज़्यादा रो रही थी। इरम की कहानी सुनते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरी अम्मा की कहानी को दोहराया जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इरम बगैर शादी के एक बच्चे की माँ थी और मेरी अम्मा शादी करने के बाद एक बच्चे की माँ थी। मैंने इरम को अपनाया और इरम की बेटी को अपना नाम दिया। आज हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं।